Hello dear students, today we are going to understand the concept of consumer's equilibrium. To understand the concept of consumer's equilibrium, we first need to know the meaning of consumer's equilibrium. Consumer's equilibrium is a situation in which a consumer gets maximum satisfaction by spending his given income on different goods and services. Consumer equilibrium एक ऐसे सिचुएशन है जिसमें कंज्यूमर अपनी दी गई इनकम को डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाता है. There are some assumptions of consumer's equilibrium. If we talk about assumptions, the first one is consumer is assumed to be rational. Now the question arises, what do we mean by a rational consumer? A rational consumer is one who wants to get maximum satisfaction by spending his given income. यानी कि rational consumer वो होता है जो अपनी दी गई इनकम को खर्च करके maximum satisfaction पाना चाहता है. Now the second one, utility should be measured in terms of cardinal numbers only, like 1, 2, 3, 4, etc. Now third one, utility should be independent. It means it should depend upon the quantity of that commodity which we are consuming. It should not be affected by the consumption of any other commodity. Now fourth, marginal utility of money should remain constant. Now dear students, there are two different situations to understand the concept of consumer's equilibrium. First, consumer's equilibrium, one commodity case, and second, consumer's equilibrium, two commodity case. Today in this video, we will understand the concept consumer's equilibrium, single commodity case. Now dear students, in case of one commodity, a consumer will be in equilibrium when two conditions are satisfied. The first, MUX by MUM equals to PX, or MUX by PX equals to MUM, or MUX equals to PX. Now हम बात करते हैं ये MUX क्या है. इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी, यानी कि जो भी कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे हमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसे हम MUX कहते हैं. वही हम बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी की. इट मीन्स द वर्थ ऑफ अ रुपी, यानी कि जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं पर रुपी क्या सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है. वही PX कहलाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. नाउ सेकेंड कंडीशन है टोटल गेन मस्ट डिक्रीज आफ्टर इक्विलिब्रियम. ये इक्विलिब्रियम के बाद क्या होना चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए. यानी कि इक्विलिब्रियम पॉइंट वही है जहां ये दोनों बातें सेटिस्फाइड होती हैं. MUX और MUM का रेशो PX के इक्वल होना चाहिए और टोटल गेन जो हमें मिल रहा है वो आफ्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट डिक्रीज होना चाहिए. नाउ हम बात करते हैं assumptions of consumer's equilibrium in case of one commodity. The first assumption, consumer is assumed to be rational. I hope you know it well. B, utility should be measured in terms of cardinal numbers like 1, 2, 3, 4, etc. C, consumption of the commodity should continue. It means अगर आप किसी commodity को consume कर रहे हैं तो आपको उसका कंजप्शन कंटिन्यू करना है. डी, ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी होमोजीनियस. मीन्स आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं उसकी सारी यूनिट्स होमोजीनियस होनी चाहिए. नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी मस्ट डिक्रीज. एज वी ऑलरेडी नो लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ का कंजप्शन करते हैं उसकी हर नई यूनिट से मिलने वाला नया सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होता रहता है और वही यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए. एंड लास्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट. तो आइए समझते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस विद द हेल्प ऑफ अ टेबल एंड डायग्राम. Now dear students, let us understand the concept of consumer's equilibrium by having a numerical example. Now हम यहाँ ध्यान देते हैं. देखिए यहाँ दिया गया है मार्जिनल यूटिलिटी इन यूटिल्स. ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स दिया गया है या इन टर्म्स ऑफ मनी दिया गया है. शेड्यूल इज गिवन बिलो. आपको ये दिया गया है यूनिट्स और ये दी गई है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स.
ये दो चीजें आपको दी गई हैं। इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 2 यूटिल्स, आप ध्यान दीजिए MUM2 है एंड प्राइस इज ₹2 पर यूनिट, और जो प्राइस है ₹2 पर यूनिट है, हाउ मेनी यूनिट्स शुड कंज्यूमर कंज्यूम टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए कंज्यूमर को कितनी यूनिट्स कंज्यूम करनी है ये हमें बताना है, जबकि दो चीजें हमें दी गई हैं। अब आपको मैं बताता हूं, हमने पढ़ा था कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट, MUX बाय MUM इक्वल्स टू PX होना चाहिए। सेकंड, टोटल गेन मस्ट डिक्रीज आफ्टर इक्विलिब्रियम, यानी कि जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा उसके बाद जो टोटल गेन है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स दिया गया है और साथ साथ में दिए गए हैं प्राइस ₹2 पर यूनिट, बट प्राइस के साथ साथ सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में कंपेयर करना आसान नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स को कन्वर्ट करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, ताकि इसका कंपैरिजन प्राइस के साथ किया जा सके। और मार्जिनल यूटिलिटी को यूटिल से मनी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस मार्जिनल यूटिलिटी को MUM से डिवाइड करना है। MUM हमारे पास कितना है 2, तो आप पूरी मार्जिनल यूटिलिटी को जब MUM से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी। सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, 0 divided by 2 is equals to 0 and -2 divided by 2 is equals to -1. Now जो हमें मिला है this is marginal utility in terms of money. अब कंपैरिजन बहुत इजीली हो जाएगा, हमें प्राइस का और मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी का कंपैरिजन करना है। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात कि कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को, किसी चीज पर ₹2 खर्च करता है और बदले में उसे ₹4 के इक्वल क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो अगर ₹2 खर्च करके ₹4 का सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो निश्चित तौर पर एवरी कंज्यूमर विल परचेज इट। तो क्या होगा कि ₹2 खर्च करके ₹4 का सेटिस्फेक्शन मिला है तो कंज्यूमर विल बाय इट, यानी कि वो पहले यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी in terms of money is greater than price of the commodity. Consumer का satisfaction in terms of money is greater than his expenses. तो वो इस यूनिट को जरूर कंज्यूम करेगा। सेकंड, अब अगर वो सेकंड यूनिट कंज्यूम करता है देन यू कैन सी, आप वो खर्चा कर रहा है ₹2 का और उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ₹3 का। अगेन हिज एक्सपेंसेस लेस हैं और उसके जो सेटिस्फेक्शन है इन टर्म्स ऑफ मनी वो ज़्यादा है, तो वो सेकंड यूनिट को भी कंज्यूम करेगा, क्योंकि ₹2 खर्च करके उसको ₹3 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। नाउ हम थर्ड यूनिट पर आते हैं। थर्ड यूनिट पर ₹2 खर्च करके जो सेटिस्फेक्शन मिला है इन टर्म्स ऑफ मनी वो भी कितना है, 2 है। अब देखिए इक्वल आ जाता है, यानी MUX डिवाइडेड बाय MUM इज इक्वल्स टू PX। यहां पर हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, जहां MUX डिवाइडेड बाय MUM इक्वल्स टू होता है PX के, राइट। अब यहां पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड होनी है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि इस पॉइंट के बाद, यानी कि थर्ड यूनिट जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हुआ है, इस यूनिट के बाद जो टोटल गेन है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। कैसे होगा देखिए, जब वो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करता है तो ₹2 खर्च करके उसे ₹4 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि उसे जो टोटल गेन होता है ₹2 एक्स्ट्रा मिलते हैं। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके ₹2 खर्च करके उसे 3 का सेटिस्फेक्शन मिलता है, यहां भी वो ₹1 बचाता है। वो फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करता है तो आप देखिए गेन क्या होने लगा है, डिक्रीज होने लगा है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 3 + -1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इस यूनिट के बाद, थर्ड यूनिट के बाद टोटल गेन क्या होने लगे हैं, डिक्रीज होने लगे हैं, यानी कि सेकंड कंडीशन भी अप्लाई हो रही है। अकॉर्डिंगली अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कंज्यूमर विल कंज्यूम 3 यूनिट्स बिकॉज एट थर्ड यूनिट both the conditions are satisfied, right? अब हम बात करते हैं बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को उस डायग्राम से समझते हैं। देखिए डायग्राम पर एक्स एक्सिस पर हमने यूनिट्स ली हैं, यूनिट्स हमें दी गई है 1 2 3 4 5 6, और वाई एक्सिस पर हमने ली है मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्राइस। ना आप देख सकते हैं प्राइस कांस्टेंट है, 2 है, तो एट एवरी यूनिट
price is constant, it is 2. Now look at this line, this is 2 and price is constant here, right? After this, at first unit, marginal utility in terms of money is 4. At first unit, marginal utility in terms of money is 4. At second unit, marginal utility in terms of money is 3. At second unit, it is 3. At third unit it is 2. It is 2. अब आप देखिए थर्ड यूनिट पर marginal utility in terms of money is equals to price. That means this is the point at which consumer is in equilibrium, right? Before this, marginal utility is greater than price. So in this case, the consumer is not in equilibrium because his satisfaction is greater than his expenses. So क्योंकि खर्च कम है और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, तो वो कंजप्शन को तब तक करता रहेगा जब तक उसके एक्सपेंसेस उसके सेटिस्फेक्शन के इक्वल नहीं हो जाते, और इस पॉइंट पर उसके एक्सपेंसेस उसके सेटिस्फेक्शन के क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. सो दिस इज द पॉइंट एट विच कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम, मीन्स एट थर्ड यूनिट कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम. अब क्या होगा अगर वो थर्ड यूनिट के बाद भी कंजप्शन करता है, तो थर्ड यूनिट के बाद आप ये देख सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी लेस देन प्राइजेस, यानी कि अब जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जो मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो प्राइजेस से कम हो गया है. यानी कि अब उसका खर्च है ज़्यादा, 2 रुपये खर्च करके उसे 1 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिला है. तो निश्चित तौर पर अगर 2 रुपये खर्च करके 1 रुपये का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो कंज्यूमर इस कमोडिटी को कंज्यूम नहीं करेगा. तो यहाँ वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है. ऐसे में वो क्या करेगा, उसे कंजप्शन को रिड्यूस करना होगा और उसे फोर्थ यूनिट से वापस कहाँ आना होगा, थर्ड यूनिट पर आना होगा. ऐसा करने पर जो मार्जिनल यूटिलिटी है इन टर्म्स ऑफ मनी, वो वापस इंक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर कहाँ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गिवन 3 different conditions and we are asked that what should a rational consumer do in the given situations. कहा गया था कि क्वेश्चन लिखा है व्हाट शुड अ रेशनल कंज्यूमर डू इन द गिवन सिचुएशन. पहले सिचुएशन में दिया गया है इफ MUX बाय MUM इज ग्रेटर देन PX. देखिए मैंने कहा था इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी, और हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं प्राइस से. तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें कमोडिटी के कंजप्शन से मिल रही है इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर वो हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो हम कंजप्शन को कंटिन्यू करते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा गेन ज़्यादा होता है. सो देखिए पहली कंडीशन दी गई है, वो चाहे इस तरह से लिखी भी आ जाए, आइदर इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, किसी भी फॉर्म में लिखी हुई आ जाए, हमारा आंसर क्या होगा, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. यानी कि इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब यहाँ साइन होता है इक्वल्स टू का. तो उसे क्या करना है, क्योंकि हमारा कंजप्शन सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी ज़्यादा है और प्राइस कम है, तो हम क्या करेंगे, हम कंजप्शन को यानी कि कंज्यूमर को ही शुड कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. और ये कब तक करना है, जब तक वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं पा लेता, यानी कि जब तक MUX बाय MUM इक्वल्स टू PX नहीं हो जाता. कंडीशन 2, MUX डिवाइडेड बाय MUM इक्वल्स टू PX. नाउ लुक एट दिस फॉर्म, यहाँ साइन आया इक्वल्स टू का, यानी कि जो सेटिस्फेक्शन हमें इन टर्म्स ऑफ मनी मिल रहा है वो हमारे एक्सपेंसेस के इक्वल है, यानी कि कंज्यूमर कहाँ है, इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है. तो हम क्या लिखेंगे, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, सो ही शुड स्टॉप द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी. क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो हम इस कंडीशन पर आ जाएंगे. ठीक है ना, तो हमें यहाँ इस सिचुएशन में आकर कंजप्शन को स्टॉप कर देना है. नाउ थर्ड, MUX बाय MUM इज लेस देन PX, यानी कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, अब वो हमारे एक्सपेंसेस से कम है. एग्जाम्पल दिया था हमने टेबल में कि अब 2 रुपये खर्च करके हमें सेटिस्फेक्शन सिर्फ 1 रुपये का मिल रहा है, तो हम कंजप्शन नहीं करेंगे. तो यह क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ही शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि इस केस में उसके गेन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं. तो अगर उसे अपने गेन को मैक्सिमम करना है, अगर उसे अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना है, देन ही शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी. और कब तक रिड्यूस करना है, तब तक रिड्यूस करना है जब तक ये सिचुएशन नहीं आ जाती. ठीक है, नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल.
रवि लाइक्स आइसक्रीम, रवि को आइसक्रीम पसंद है। ही हैज़ कंज्यूम्ड 4 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, उसने 4 यूनिट्स आइसक्रीम की कंज्यूम कर ली है। यदि प्राइस 20 रुपीज़ पर यूनिट हो, MUX 80 यूटिल्स हो और MUM 4 हो, तो क्या वो इक्विलिब्रियम में है और उसे अब क्या करना चाहिए? तो आइए, हमने बताया था हमें मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसके लिए हमें क्या करना होगा, MUX को MUM से डिवाइड करना होगा। MUX दिया गया है 80 और MUM दिया गया है 4। देन इफ वी डिवाइड 80 by 4 हियर, दैट इज 20, राइट। एंड ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू प्राइस। प्राइस कितने दिए गए हैं, 20 दिए गए हैं। तो दिए गए केस में MUX by MUM इक्वल्स टू PX हो जाता है, यानी कि ये वाली कंडीशन आ रही है। तो हमारा आंसर क्या होगा, कंज्यूमर यानी कि रवि इज इन इक्विलिब्रियम, सो ही शुड स्टॉप द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। बट अगर यहाँ ये केस ना आता, मान लीजिए अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, नाउ अगर यहाँ 60 होता तो हमारा फॉर्मूला बनता 60 डिवाइडेड बाय 4। नाउ जब हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 15 आएगा। अब आप ध्यान दीजिए कि MUX डिवाइडेड बाय MUM यानी कि मार्जिनल सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी कितना आता है, 15 आता है, जबकि हमारा उस पर खर्च कितना है, 20, यानी कि 20 रुपये खर्च करके हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी वो सिर्फ 15 है। तो ऐसे में हमारी इक्वेशन क्या बनती है, यानी इस समय इक्वेशन बनती है ये, सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी इज लेस देन द एक्सपेंसेस। इट मीन्स कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम एंड ही शुड रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। आई होप डियर स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।